आइए हम फिर से कैसे सम्यक श्रवण, ठीक तरह से सुनना, पहले इसको हम सुने और समझें और प्रयोग करें। देखिए, जब हम सुनते हैं, अगर हमारे किसी पैर में अचानक चोट आ गई, फ्रैक्चर हो गया, उस समय कोई कुछ भी कहे सुनाई नहीं पड़ेगा। इसका अर्थ है कि हमारा पैर सुनने की क्रिया से जुड़ा है। ऐसे शरीर के किसी अंग में ऐसे कोई चोट आ जाए कि हमें आह निकल आए, तो जो कुछ हम सुनते रहेंगे ठीक से सुन नहीं पाएंगे। इससे सिद्ध होता है कि सुनने की क्रिया शरीर के प्रत्येक अंग से जुड़ा है। तो जब आप सुन रहे हो तो उसी समय, सुनते समय शरीर के प्रत्येक अंगों में एकाग्र हो जाइए। पैर कहाँ है, पीठ कहाँ है, हाथ कहाँ है, पेट, सीना, गला, चेहरा, शरीर कहाँ है, इसमें एकाग्र हो जाइए। और एकाग्र होने का अच्छी तरह से अभ्यास में आपको पता है, 2 बार श्वास प्रश्वास की क्रिया करते हुए अंगड़ाई लीजिए, बैठ करके, खड़े होकर के, तो हम थोड़ा आवेग हो जाते, सजग हो जाते। I request that you must try to practice how to have perfect listening, perfect hearing. Suppose that you are hearing, you are listening, immediately something happens and leg is broken. You will such great pain in the leg that you cannot hear, you cannot listen at that moment. Even listening activities associated with the right leg also. In the same way, take any part of the body. If there is very dangerous, some problem is there, something cut is there, injury is there, we will have hard of hearing, hard of listening. Even listening ability is connected with all parts of the body. Therefore, when you are listening anything, I am going to explain something very important. You should be fully aware how to listen. It is only possible when you are listening at the same time. Feel right leg, left leg, right arm, left arm, back, right and left, abdomen, chest, neck, face and head. It is important. Practice double breathing, followed by stretching relaxation with the open eyes. And feel head to toes. You will be more awake to listen. Then we have to follow now teaching of the highest realized person. We have to follow the teaching of the wisest. Who is the wisest? Who can demonstrate victory over death? Who is able to demonstrate victory over death? Mahatar Babaji. He transferred his knowledge of immortality to Yogata Lahari Mahase, Purushottam. Lahari Mahase also able to demonstrate there is no death. Same knowledge was transferred to P. Nath Karar, who is famous Gyanatarik Tirsharji. He is having the same knowledge of immortality. The same knowledge was transferred to Paramhamsa Yogananda. He also demonstrated the same. Now we have to take advice of Mahatar Babaji. He appointed Paramhamsa Yogananda to spread the message, teaching of Mahatar Babaji. And Lahari Mahase, all he revealed that after 50 years of his passing away, means 50 years when Lahari Mahase entered into Mahasamadhi, 50 years after that, something will be written about him, about many other things, about Indian heritage. And that book will be published in the West. That was done by Paramhamsa Yogananda. That is autobiography of Yogi and the Holy Science interpretation. It means now you have to follow exactly what is the teaching of Paramhamsa Yogananda. His teaching is available in the form of self-realization fellowship lessons. In YSS lessons, you can request a SRF center or YSS to get the lessons. And same teaching is packed in autobiography of Yogi and the Holy Science. You are going to practice same teaching here. अच्छी तरह से याद रखिए कि हम किसको फॉलो करें, जो परम ज्ञानी हो, जो सिद्ध कर चुके हों अंतिम सत्य। अंतिम सत्य क्या है? परब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं, और परब्रह्म अमर है।
सर्वव्यापी हैं, परब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं। आप और हम ब्रह्मांड की प्रत्येक रचनाएं ये परब्रह्म का ही अलौकिक रूप है। जब परब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं तो परब्रह्म अमर है। परब्रह्म का स्वभाव है संपूर्ण ज्ञान, परम शांति, परम आनंद, ये सब उनका स्वभाव है, सर्वव्यापकता। इससे सिद्ध होता है हम और आप ब्रह्मांड की प्रत्येक रचनाएं सर्वव्यापी हैं, अमर हैं। इस शिक्षा को कैसे हम पाएं? वही शिक्षा महाअवतार बाबा जी ने योगावतार लहरी महाशय को दिया। फिर लहरी महाशय ने सिद्ध किया कि केवल अमरता का अस्तित्व है, अमर तत्व के अलावा कुछ भी नहीं, इन्होंने सिद्ध कर दिया। वही ज्ञान प्रियनाथ कड़ार को गया जो ज्ञानावतारिक्तेश्वर जी के नाम से मशहूर है। वही ज्ञान आपको मिला, आपने भी सिद्ध कर दिया कि केवल अमरता ही सच है, मृत्यु और मृत्युलोक नहीं होता है। वही ज्ञान ट्रांसफर हुआ परमहंस योगानंद के रूप में, और महाअवतार बाबा ने परमहंस योगानंद को नियुक्त किया पूरे विश्व में इस ज्ञान को फैलाने के लिए। अमेरिका गए और लहरी महाशय ने भी कहा था उनके जाने के 50 साल के बाद उनके विषय में और क्रिया के विषय में पश्चिम में सदग्रंथ लिखा जाएगा। वही परमहंस योगानंद ऑटोबायोग्राफी लिखे और होली साइंस का इंटरप्रिटेशन दिया। तब सिद्ध हो गया कि हमारा मार्ग क्या है जो परमहंस योगानंद ने दिखाया है। उन्होंने अलग से भी लिखा दिया है, सेल्फ लेसन, फेलोशिप लेसन एंड वाइसेस लेसन। आप आराम से उसको पढ़ करके अभ्यास कर सकते हैं। और अगर समझ में नहीं आता तो आप चिंता ना करिए, आप आइए क्रियागाश्रम में प्रयागराज में, उसी जगह पर जहाँ महाअवतार बाबा आए थे, जहाँ प्रियनाथ कड़ार को स्वामी की उपाधि दिए थे, वही बटवृक्ष है। ये बटवृक्ष किस जगह पर है? जो गांधी मार्ग है, इसके पूरब का जो केंद्र बिंदु है वहाँ पर है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप योगदान मठ जाइए, SRF सेंटर जाइए, या यहाँ पर आइए प्रयागराज में, आपको सारे लेसन समझ में आ जाएंगे। और परमहंस योगानंद ने कहा क्या? महासमाधि के ठीक पहले कहा सभी राष्ट्रों को महात्मा गांधी को फॉलो करे। महात्मा गांधी पूरे जीवन सब में एकता स्थापित करने की शिक्षा देते रहे। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सब एक हों, आपस में लड़ाई झगड़ा न करें। अल्लाह उन्हीं का नाम है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। इसको महात्मा गांधी ने कहा। आज हम आपको बताएंगे अल्लाह का अर्थ क्या है। खुदा का अर्थ हमने कल बताया था ना। सेम परमहंस योगानंद बिफोर एंटरिंग इनटू महासमाधि, he gave message to all nations on this planet that they have to follow Mahatma Gandhi. What Mahatma Gandhi was working up to each and every moment of his life, he was just practicing, he was teaching how to bring unity among Hindus and Muslim and Christian together. You should not practice any differences. Therefore, it is our duty to follow Mahatma Gandhi according to the advice of Paramahansa Yogananda. Yesterday we learned what is Khuda. Today we are going to learn what is Allah. What is the meaning of Allah? What is the meaning of Khuda? Khuda study, we explained Khud means self. Khud is called the self. Existence of self is called Khud. And when you concentrate on Khud, then what you realize? This Ah. What is the meaning of Ah? That is the power and knowledge of creation. See for creation, power and knowledge of preservation, and power of knowledge of quality change. That is Brahma, Vishnu and Shiva. And you have attention, concentration on head to toes. What you realize? Head to toes is presence of complete knowledge of creation, preservation and change. This realization is called, we are one with the Khuda. This is a study we learn little bit. Today we are going to learn what is Allah. कल हम लोगों ने समझा था खुद का मतलब क्या है। खुद, सेल्फ, अपने अस्तित्व को हम खुद कहते हैं।
और जब हम खुद में एकाग्र होते हैं तो पता चलता है ये क्या है? कहते सृजन, सुरक्षा, परिवर्तन से संबंधित संपूर्ण ज्ञान और शक्ति को कहते हैं। तो अपने में एकाग्र हो जाते हैं तो ज्ञान होता है कि सिर से पैर की उंगली तक ये जो साकार रचना है, ये साकार रचना है। ज्ञान शक्ति, कौन सा ज्ञान शक्ति? सृजन, सुरक्षा, परिवर्तन से संबंधित जो ज्ञान और शक्ति उसी का साकार रूप है। जब पता चल गया तो खुदा से मिल गई। अब खुदा से मिलने का मतलब सेल्फ रियलाइजेशन। अगर आत्मज्ञान हो गया तो ब्रह्म ज्ञान अपने आप हो जाता है। 1994 में जब मैं अमेरिका कनाडा में क्लास ले रहा था तो एक सूत्र था, वहाँ पर प्रकट किया गया था कि सेल्फ रियलाइजेशन ब्लॉसम्स इनटू गॉड रियलाइजेशन। अगर आप आत्मज्ञान प्रकट हो गया है तो ब्रह्म ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाएगा। ये है अल्लाह का मतलब क्या है। देखिए, के बारे में हम लोग अभी समझ चुके हैं। वो शक्ति और ज्ञान जो सृजन, परिवर्तन, सृजन, सुरक्षा, प्रिजर्वेशन और परिवर्तन से संबंधित है। पी है प्रिजर्वेशन, संरक्षण, तो यानी सृजन और सुरक्षा, परिवर्तन संबंधित ज्ञान को हम कहते हैं। ला कहते हैं। ला का दो शब्द, एक है विनम्रता, असीमता को पहुंची। जैसे पानी विनम्र है, ला को कहते हैं लाना भी। जब सिर से पैर की उंगली तक अपने में एकाग्र हो जाते हैं और पता चला कि ये एकाग्र हो गए तो हमारी विनम्रता अनंत है। विनम्रता अनंत कब होती है? जब सिर से पैर की उंगली तक इसके अंदर वो ज्ञान हो कि कंपैरिजन बंद कर दें, ये बड़ा या छोटा कहना बंद कर दें। ब्रह्मांड की संपूर्ण रचनाओं को हम परब्रह्म का अस्तित्व के रूप में स्वीकार करें तो हमें जब विनम्रता अनंत हो जाती है। जब विनम्रता अनंत हो जाती है तो अल्लाह की प्राप्ति हो गई हमें। जब अल्लाह की प्राप्ति हो जाती है फिर क्या होता है? फिर हमें का ज्ञान हो जाता है। ब्रह्मा विश्व शिव के अंदर जो ज्ञान और शक्ति उसी की अनुभूति होने लगती है। फिर क्या होता है? हा का मतलब क्या है? हम स्वतंत्र हो गए, सब कुछ आ गया, अब कुछ जानना शेष नहीं रहा। जब कहते हैं पूरी हवा बाहर निकल गई, अब इसकी आवश्यकता नहीं है, हम ऑक्सीजन के बंधन से मुक्त हो गए, तो इसको कहते हैं परम आनंद, पूर्ण स्वतंत्रता। तो अल्लाह का अर्थ ये हुआ और यही खुदा है। तो जब हम क्रिया योग ध्यान करते हैं तो अल्लाह की अनुभूति होती है, खुदा की अनुभूति होती है, आत्मज्ञान होता है। आत्मज्ञान की प्राप्ति, खुदा की अनुभूति, अल्लाह की अनुभूति, सब एक ही भावना के अलग अलग शब्द हैं। ये एक अलग अलग नहीं है। जो अलग अलग शब्द हैं, ये खुदा, अल्लाह, आत्मज्ञान, ये तीनों जो अलग अलग शब्द हैं एक ही भाव को प्रकट करते हैं। इससे तीनों में अंतर नहीं है। इसके नाम से आप लोग झगड़ा ना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, डू नॉट फाइट विद दिस नेम। इज समबडी टेलिंग अल्लाह, somebody telling Khuda, somebody telling God, Parbrahma, all are the same. At least the persons who are practicing the Kriya Yoga meditation, they should follow it. If you are following it, then you are following Yogananda, then you are following Mahatar Babaji, you are following Lahiri Mahasaya, you are following Ikteshwari. That's very important. Then from today onwards, try to practice this again. When you are listening, feel head to toes. When you are eating the food, at the same time feel head to toes. इस चीज़ को याद रखिए कि हम अल्लाह कहें, खुदा कहें, भगवान कहें या स्वरूप दर्शन कहें, परब्रह्म की अनुभूति कहें, सबका अर्थ एक है। हम आशा नहीं करते पूरी दुनिया के लोग इसको मान लेंगे, लेकिन जितने लोग क्रिया का अभ्यास करते पूरी दुनिया में लाखों लोग करते हैं, करोड़ों लोग करते हैं। क्रिया से जुड़े कई करोड़ लोग हैं और सबसे आशा की जाती है कि परमहंस योगानंद की शिक्षा को स्वीकार करें। वही शिक्षा है जो ज्ञानावतार इक्तेश्वर का है, वही शिक्षा है जो लाहिड़ी महाशय का है, वही शिक्षा महातार बाबा का है, वही शिक्षा बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, वही शिक्षा भगवान राम और कृष्ण ने दिया। I request all of you, try to follow this teaching of Paramahansa Yogananda, that Khuda or self, Atmagyan, Allah, Ishwar, Bhagwan, Parabram, all are having the same meaning. At least the persons who are practicing Kriya Yoga on this planet,
There are huge number. Many crores are practicing. Actually, they should follow this practice. If you are following this practice, you are honoring Paramahansa Yogananda. Not only that, you are honoring Gyanatarik Tesagri. You are honoring Yogatar Purushottam Lahiri Mahasaya. You are honoring Mahatar Baba. Not only this, you are honoring Kabir Sahib, Guru Nanak Dev Ji. You are honoring Jesus Christ, Buddha, Mahavir Swami, Bhagwan Ram and Krishna. You are honoring, you are giving greatest honor, respect to all prophets of all ages and land. I request again from this moment to practice sincerely. हम आपसे पूरा निवेदन कर रहे हैं कि खूब अभ्यास करिए. आप हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन के बीच में आप भेद मत समझिए. Let us bow down to our deep devotion in Kriya meditation. क्रिया योग में अपनी भक्ति को नमन करें. Now we will sit and open eyes. हम बैठे, आंखें खोलें.